everyone. Today we are going to study about the topic that is capital structure and components of capital structure in the very first chapter, Introduction to Corporate Finance. Now, what is capital structure? Now, capital structure constitutes of two words, that is capital and structure. ये दो words से बना गया है, वो है capital and structure. Capital हमें पता है, that is the money invested by the businessmen in the business organization to run their operation and for their to gain profit. So, capital refers to investment of funds in the business, while structure means arrangement of different components in proper proportion. Definitely, capital जो है वो business में businessman लगाता है, पर सारा capital नहीं लगा पाता है. उसे एक huge capital की ज़रूरत होती है to run the business organization. So, he arranges capital from different sources. So, that different sources is need to be structured properly. Thus, capital structure means mix-up of various sources of funds in desired proportion. To decide capital structure means to decide upon the ratio of different types of capital. Definitely, वो capital मैं फिर से repeat कर रही हूँ, businessman capital, सारा capital business में खुद invest कर पाने में कहीं ना कहीं lack करते हैं. That's why they arrange capital from different sources. So in this we are going to study about what is capital structure and the components of, yani what are the parts of capital structure, how a capital is structured in a business organization to run the entire business. Yes. So definition is given by R.H. Wiesel, defines capital structure as the long-term source of funds employed in a business enterprise. That means एक long-term source of fund है that is used in a business organization. यानी कि एक long-term capital जो business firm में लगाया है to gain maximum profit. Thus, capital structure is composed of own funds and borrowed funds, यानी कि खुद के funds, business का खुद का funds and borrowed funds. खुद के funds कहाँ से आएंगे? By way of issuing equity shares, by way of issuing preference shares, by way of retained earnings, by way of own funds हो गया. Now borrowed funds क्या हो जाता है? जो borrow करते हैं from different financial institution like banks से borrow करना, यानी कि और या फिर अपने बिजनेस के ही डिबेंचर्स सेल करके. लेट अस स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. कैसे एक कैपिटल को स्ट्रक्चर किया जाता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एंड व्हाई इट इज नेसेसरी. देयर आर फोर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. फोर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर होता है. एक कैपिटल बिजनेस मैन भी लेके आता है, बिजनेसमैन खुद कैपिटल इन्वेस्ट करता है. उसके अलावा वो इक्विटी शेयर के फॉर्म में इन्वेस्ट करता है, यानी कि वो इक्विटी शेयर्स खरीदेगा बिजनेस का और इन्वेस्ट करेगा. साथ ही साथ वो इक्विटी शेयर्स दूसरों को भी अलाउ करेगा ताकि वो इन्वेस्टर्स है वो इक्विटी शेयर खरीद के उनके बिजनेस में अपने पैसे लगाएं. The very first component is equity share capital. It is the basic source of financing business activity. Basic source of financing equity, financing the business activities है, जिसमें equity share उसको कहा गया है that which a company raise money in exchange for a share of ownership in the company. यानी कि business क्या करता है? अपना ownership देता है to different investors or individuals, where they invest their money and they become the owners of the company for the entire time, for the lifetime of the company or till the winding up of the company. What they get dividend and repayment of capital. Equity shares को डिविडेंड मिलता है. डिविडेंड यानी कि उन्होंने 20 लाख कैपिटल अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है आपके कंपनी में, तो उनको वो ओनर्स बन जाते हैं आपके कंपनी के. साथ ही साथ उनको आपको डिविडेंड यानी कि प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में से कुछ पार्ट उनको आपको पैसे देने पड़ेंगे. दैट इज नोन एज डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी. और जब कंपनी बंद होती है, जो कैपिटल उन्होंने लगाया है, फॉर एग्जांपल 20 लाख कंपनी में लगाया है, तो वो भी उनको
वापस मिलता है। दे ओन द कंपनी एंड बेयर द अल्टीमेट रिस्क, यानी कि वो कंपनी को ओन करते हैं। एक बार किसी ने कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल खरीद लिया, दे बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो दे बेयर द रिस्क वाई इफ द कंपनी इज इन लॉसेस, ओके, और they have taken loans, they have taken much loans एंड दे हैव टेकन प्रेफरेंस शेयर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस नहीं मिलता है, वो सबसे लास्ट में पे ऑफ होते हैं। सबसे पहले डेब्ट पे ऑफ करना पड़ता है, डिबेंचर्स पे ऑफ करना पड़ता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका कैपिटल दिया जाएगा, डिविडेंड दिया जाएगा। उसके बाद में अगर कुछ बचा कंपनी में तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, अगर नहीं बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को लॉस बेयर करना पड़ेगा और उन्हें उसी लॉस बेयर करके रहना पड़ेगा। They carry dividend at fluctuating rate depending upon the profits of the company. Definitely उनको dividend fix rate पे नहीं दिया जाता है कि भाई साल में अगर profit होगा तो देंगे ही देंगे 10%, profit नहीं हुआ तो नहीं भी मिलेगा। और अगर profit ज़्यादा हुआ तो अच्छा rate of interest में उनको मिलेगा, कम हुआ तो कम, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो 15% इंटरेस्ट मिल गया, अगर नॉर्मल प्रॉफिट हुआ 10% उनको डिविडेंड मिल गया रेट पे। तो दैट फाइन, जो शेयर कैपिटल खरीदता है दे गेट द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, ओके। तो जो कंपनी है, बिजनेस एंटरप्राइजेज है, वो कैपिटल कहाँ से लाते हैं? इन द फॉर्म ऑफ सेलिंग देयर शेयर्स। तो व्हेन द कंपनी सेल देयर शेयर्स, ओके, दे गेट मनी इन द बिजनेस। तो जब पैसे आ जाते हैं, when this money come in the business, then only the company operates all the function from production to distribution level. So one component is equity share capital. Equity share capital is the very basic source of capital that helps in financing the business activities. Next we have preference share capital. Preference share capital जो होता है, it carry preferential rights to payment of dividend and have the priority over equity shareholders for returns of capital when the company is liquidated. यानी कंपनी जब बंद होने होती है तो जो भी कैपिटल जिसने लगाया है उनको वो कैपिटल वापस देना पड़ता है। अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू उन्होंने कैपिटल लिया है इन्वेस्टर्स से, तो उनको सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को क्या करना पड़ेगा? उनका कैपिटल लौटाना पड़ेगा, उसके बाद इक्विटी शेयर वालों का नंबर आएगा, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर कैरी प्रेफरेंशियल राइट फॉर पेमेंट ऑफ देयर डिविडेंड। डेफिनेटली डिविडेंड यानी कि कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो सबसे पहला जो प्रॉफिट का हिस्सा होगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। उसके बाद जो पैसे बच जाएंगे वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड किया जाएगा। These shares carry dividend tax fixed rate। और डेफिनेटली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस दिया जाता है, ओके। तो दे कैरी डिविडेंड एट फिक्स रेट और इक्विटी शेयर को फ्लक्चुएटिंग रेट पे मिलता है, यानी कि अगर प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। पर प्रेफरेंस शेयर को फिक्स रेट पे उनको उनका डिविडेंड रिटर्न करना ही पड़ेगा। यानी कि 20 लाख अगर उन्होंने लगाया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो उनको उसका 20 लाख का 10% रिटर्न डिविडेंड प्रोवाइड करना पड़ेगा ईच एंड एवरी ईयर। नाउ रिटेन अर्निंग्स। दो कैपिटल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए, एक है इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये दो के थ्रू वो लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टर्स से पैसे लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग देयर शेयर इन देयर बिजनेस। वो अब प्रोवाइड करेंगे कि आप हमारा शेयर खरीदो और ओनर बन जाओ। थर्ड इज रिटेन अर्निंग, यानी कि ये क्या होता है? एक इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग हो जाता है, जहाँ पे कंपनी जब ह्यूज प्रॉफिट कमाती है, जब वो दे अर्न मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लग जाती है, तो बिजनेस क्या करता है? उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट, थोड़ा सा हिस्सा बचा के रखता है कि अगर कुछ रिस्क हो गया या अनसर्टेनिटीज आ गई तो वो उस रिजर्व से यूज कर सकता है। तो रिटेन अर्निंग्स इज द इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, ओके। इट इज नथिंग बट प्लॉगिंग बैक ऑफ द प्रॉफिट, यानी कीपिंग बैक द प्रॉफिट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेफिनेटली अगर कोई रिस्क नहीं हो रहा है बिजनेस में, तो फिर वो अपना एक्सपेंशन के लिए या एसेट्स खरीदने के लिए वो रिजर्व्स भी यूज कर सकती है। सो 3 कंपोनेंट्स पढ़ लिए हमने। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड रिटेन अर्निंग्स। तो दीज आर द
3 components of capital structure. Next we have fourth one is borrowed capital. जब उन्होंने एक इंटरनल सोर्स के थ्रू पैसे अरेंज कर दिए, नेक्स्ट कम आउटर सोर्स यानी कि बोरो कर सकते हैं पैसे, फिर भी कैपिटल की ज़रूरत हो गई, इक्विटी शेयर्स के थ्रू उन्होंने पैसे ले लिया बिजनेस को चलाने के लिए, प्रेफरेंस शेयर के थ्रू उन्होंने पैसे ले लिया बिजनेस को चलाने के लिए, कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी अगर उनका यूज होता है तो वहाँ से भी वो मेंटेन करके रखते हैं कि भाई इतना कुछ अनसर्टेनिटी हो गया तो हम वहाँ से यूज़ करेंगे। फिर भी कंपनी को कैपिटल चाहिए कि वो अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पा रही, अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही, उनको एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे चाहिए, प्रमोशन के लिए पैसे चाहिए, प्रोडक्ट के पैकेजिंग को अच्छे से डिज़ाइन करने के लिए पैसे चाहिए, ओके, इनोवेशन करना है अपने प्रोडक्ट में, ओके, तो उनको पैसों की और ज़रूरत होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो वो कहाँ से ला सकते हैं, वो बोरो कर सकते हैं कैपिटल। तो अनदर पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज टू बोरो द कैपिटल फ्रॉम वेयर इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर दे कैन डू इट, दैट इज it is an acknowledgement of loan raised by company has to pay interest to at an agreed rate to the debenture holder. Definitely acknowledgement है लोन का, यानी कि जब बिजनेस को पैसों की ज़रूरत होगी वो बोल सकते हैं कि हमें पैसों की ज़रूरत है, हम अपना डिबेंचर प्रोवाइड कर रहे हैं, आप हमें लोन प्रोवाइड कीजिए, हम आपको एक डिबेंचर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। तो दैट डिबेंचर सर्टिफिकेट है वो क्या होगा, एक एक्नॉलेजमेंट होगा, ओके। आप अगर एक बैंक के पास जाते हो, आपको लोन की ज़रूरत है, तो बैंक आपको ऐसे ही लोन नहीं देगा, आपको सिक्योरिटीज़ दिखानी पड़ेगी, हाँ मुझे हाउस लोन चाहिए, मेरा घर है, आप उसको गिरवी रख लीजिए और मुझे लोन प्रोवाइड कर दीजिए। तो लोन प्रोवाइड होगा, एक एग्रीमेंट साइन होगा, फिर उस एग्रीमेंट पे आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, ये सारा प्रोसेस होता है एक लोन का। सिमिलरली अगर बिजनेस पैसा लेना चाहती है फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, तो वो क्या देगी, एक एक्नॉलेजमेंट देगी, एक प्रूफ देगी कि हाँ हमने इनसे लोन लिया है, ताकि अगर हम लोन ना पे कर सके तो दे कैन गो फॉर फर्दर स्टेप्स, ताकि वो हमसे पैसे निकाल सके, राइट। तो दैट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन रेज बाय द कंपनी हैज़ टू पे इंटरेस्ट एट अ फिक्स रेट। कंपनी उनको डिबेंचर होल्डर्स को क्या प्रोवाइड करती है, इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। अगर 1 लाख का लोन उन्होंने लिया इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर फ्रॉम एन इन्वेस्टर, तो उस पर उनको 10% इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, हर साल 10,000 रुपीज़ प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट टर्म लोन भी मीन्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, 5 years, 6 years, 10 years, तो दैट इज टर्म लोन। टर्म लोन कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम बैंक्स, फ्रॉम डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंड दे कैरी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। डेफिनेटली कोई फ्री में तो पैसे देता नहीं है, आपको उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो डिबेंचर होल्डर को भी आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ता है, एंड लोन भी लोगे आप, टर्म लोन भी लोगे तो आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। सो दे आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसा उठा ले सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के थ्रू कैपिटल ले सकते हैं, रिटेन अर्निंग्स के थ्रू भी कैपिटल यूज कर सकते हैं, एंड बोरोड कैपिटल। So all this money is used for the company's overall operation and growth. Definitely operations from the production level to distribution level, जो खर्चे होंगे वो ये कैपिटल से यूज़ किया जाता है। पेइंग द सैलरीज, पेइंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेइंग द ऑल द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पेइंग द रेंट्स, तो ये सारे कैपिटल फॉर्म होता है बिजनेस का। सो इसको अच्छे से पढ़ने के लिए लेट्स सी द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट ऑफ अ सनराइज कंपनी लिमिटेड शोज शेयर कैपिटल, ओके, जो उन्होंने अपने बिजनेस में लगाया है, दैट इज 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच, ओके, दैट इज 5,000 इंटू 10, 50,000 रुपीज़ का इक्विटी शेयर उन्होंने प्रोवाइड किया है, ओके, यानी कि इन्वेस्टर्स ने 50,000 इन्वेस्ट किया है कंपनी में 5,000 इक्विटी शेयर खरीद के। नेक्स्ट इज 1,000 ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच, यानी कि 1,000 प्रेफरेंस शेयर्स बेचा है और 100 रुपीज़ ईच का, तो 1,000 इंटू 100, 1,00,000 रुपीज़ उन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू कैपिटल अरेंज किया है, और प्रेफरेंस शेयर को क्या मिल रहा है वहाँ पे 10% डिविडेंड प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट वी हैव रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस इज नथिंग बट रिटेन ऑफ द अर्निंग्स, यानी कि रिटेन अर्निंग्स है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस, यानी कि जब प्रॉफिट होता है तो थोड़े थोड़े पैसे हम रिजर्व एंड सरप्लस में
डालते रहते हैं। जब ज़्यादा प्रॉफिट होगा हम तभी ले पाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस पे। अगर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, डेफिनेटली वी हैव टू पे फर्स्ट आर डिविडेंड टू इक्विटी शेयर्स, डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड दे दिया, फिर इंटरेस्ट देना पड़ता है, डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना पड़ता है इफ देयर इज एनी बैंक लोन। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डिबेंचर है, दैट इज 1000, 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। 12% इज रेट ऑफ डिबेंचर that is to be provided by to the debenture holder by the company। तो 1000 ऑफ 100 इज तो 1 लाख रुपीज़। तो ये जो भी आप देख सकते हो कैपिटल स्ट्रक्चर, कैसे कैपिटल फॉर्म किया है, बाय द वे ऑफ इशूइंग इक्विटी शेयर, बाय वे ऑफ इशूइंग प्रेफरेंस शेयर, बाय रिटेन अर्निंग दैट इज रिजर्व मेंटेन करके, एंड बाय वे ऑफ इशूइंग डिबेंचर्स। तो टोटल जो बिजनेस ने कैपिटल अपना स्ट्रक्चर किया है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, दैट इज 2,70,000 का उन्होंने कैपिटल अरेंज किया है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। ओके, सो दिस इज कैपिटल स्ट्रक्चर वेर इट रिलेट्स टू डेप्थ एंड इक्विटी, यानी कि इक्विटी के फॉर्म में वो अरेंज करते हैं एंड डेप्थ के फॉर्म में अरेंज करते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 50,000 इक्विटी है, 1 लाख प्रेफरेंस है और 20,000 रिजर्व्स है, यानी कि 1,70,000 जो है वो कंपनी का ओन्ड फंड्स है, ओन्ड फंड, खुद के फंड्स। ओके, वेर एज 1 लाख डिबेंचर है दैट इज बोरोड फंड्स। अगर आप देखोगे तो ओन्ड फंड ज़्यादा है एंड बोरोड फंड कम है। तो ये दिखाता है दैट कंपनी इज रनिंग वेरी नाइसली, इट इज लेस रिस्की, so others can invest in this company. So this is total capital structure of a business organization. So capital structure is particular combination of debt and equity of a company that helps to finance its overall operation and growth. Thank you for watching. Please like and subscribe to my channel, and this is all for the very first chapter. Thank you.